Hello, so good evening again. So we are going to start our next lecture today. So today is a very interesting topic we are having. So we will be considering the decision making statement. In the last lecture, we have seen these all built-in functions of JavaScript, that is parse int, parse float, alert, prompt, then confirm to lowercase to uppercase and is nan. सो इनमें से कुछ फंक्शंस हम अभी यूज भी करने वाले हैं कई प्रोग्राम्स में, जैसे प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे, अलर्ट हम यूज करेंगे, पार्स इंटीजर एंड ऑल दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू, then to upper lower case, these will be used in our next program cases. Let's say first we will see what is basically decision making statements. देखो कई बार ऐसा होता है कि whenever you are writing the program, then it is necessary to take the decision. If the condition is satisfied, then something should be executed. If not, then some other thing should be executed. For an example, if I am driving, or if I am going to give the driving license, the same example we have taken, इसलिए वही बताता हूँ मैं. If your age is less than 18, then you cannot get the driving license. If it is greater than 18, you will get the driving license. तो इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं, जैसे कि इफ आई हैव एंटर्ड अ नंबर, if the number is odd, then something should be executed. If the number is even, something should be executed. Okay, in this way we are considering it as a decision making statement, means true or false, and two different conditions are there. So उसके लिए दो चीजें आती हैं. सबसे पहले आता है if statement, कि जिसमें if के बाद जो कंडीशन है वो हम लिखते हैं, और उसके बाद जो स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करना है वो लिखते हैं. दिस इज ओनली if स्टेटमेंट, सिर्फ if है इसमें. सेकंड जो आता है इसके साथ वो if और else. if else स्टेटमेंट में क्या होता है कि if भी होता है और उसके साथ you are getting else as there. Okay, so just a minute, sorry for interruption. So you will be having if condition, then you are getting open curly brace, some statement will be executed, curly brace is closed for if. अगर ये नहीं है तो else, और else में फिर क्या होता है वो स्टेटमेंट के ब्लॉक्स हम ले लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज द वे वी आर गेटिंग द डिफरेंट स्टेटमेंट ब्लॉक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इनिशियली आई विल टेल यू द थ्योरी ऑफ दिस 2-3 slides, and then we will directly move to the programs. Okay, so next is the user defined function. अभी फंक्शन क्या होता है कि it is very simple to know what is the function. Basically you are doing, let's say, additions like a plus b. So plus is a function which is there in your JavaScript. Okay, so plus function जो है वो है आपका JavaScript function, which is the function belongs to the JavaScript library. इसी तरह से if you want to generate your function of you want to declare your function, then you can declare the function, जिसका syntax है यहाँ पे सिंटैक्स दिखाई दिया है. देखो, फंक्शन ऐसे लिखना है, उसका फंक्शन का नाम देना है, उसके बाद फंक्शन का आर्गुमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने आर्गुमेंट्स है उतने, और उस फंक्शन में क्या एग्जीक्यूट करना है वो हम देखेंगे. ओके, तो इनिशियली हमने देखा इफ एल्स, अभी देख रहे हैं हम फंक्शन. तो फंक्शन जैसे कि एडिशन a, b, c, ऐसा हम बोल सकते हैं. दिस इज एन एग्जांपल. ओके, सो दीज आर द यूजर डिफाइंड फंक्शंस. After that there are very interesting thing which is called as event handling in Java. Basically Java ये होता है that is an event driven language. So what do you mean by event driven? So event क्या होता है? It is an action which is done by the user or an application. जैसे कि whenever you are going to see in a programming language or in the software case, when you click something, when you press something, when you close something, when you try to resize, when you click on mouse, so all these types are the which are called as the event types. Okay, so उस event के type को जो handle करता है वो JavaScript can be considered to be an event driven language. उसका मतलब क्या है कि certain की मैंने दबा दिया तो certain operation can handle. If I have clicked the mouse, then something can happen. Okay, that is the event handling case. Okay, so what event handlers allows? These allows user to respond to any event. और event का मतलब क्या है? कोई पेज लोड किया है, some click बटन किया है, some key is pressed and so on. Okay,
सो इस इवेंट्स के अलग अलग मेरे पास मैंने उसको हैंडलर्स और डिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा टेबल बना के रखा है. इन द टेबल लेफ्ट साइड इज द इवेंट एंड राइट साइड इज द डिस्क्रिप्शन. तो क्या क्या है देखो, बहुत सिंपल है. जस्ट यू हैव अ वेरी कीन लुक ऑन दिस. ऑन माउस आउट, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस अप. तो ऑन माउस अप का फर्स्ट ऑन माउस आउट क्या है? व्हेन द माउस मूव्स अवे ऑफ अ एलिमेंट, मींस कोई एलिमेंट से वो माउस बाहर चला गया. उसके बाद क्लिक का मतलब क्या है? उस एलिमेंट को माउस ने क्लिक किया. माउस ओवर का मतलब क्या है? कोई एलिमेंट है जैसे कि एक बटन है, उसके ऊपर मेरा माउस गया है. और थर्ड है माउस अप. तो यूजर रिलीजेस अ माउस बटन ओवर एन एलिमेंट, मींस वो बटन इवेंट के ऊपर चला गया. ओके, so these are the different four things or four events and mouse can handle or mouse can do that could be handled by the software or JavaScript. और कीबोर्ड में क्या क्या आता है? एक तो की अप आता है और की डाउन आता है. मीन्स कोई की प्रेस करते हैं, कोई प्रेस डाउन की रिलीज करते हैं. ओके, प्रेसेस अ की दैट इज की डाउन और रिलीजेस अ की दैट इज की अप. ओके, सो की अप एंड की डाउन, these are two keyboard events. Okay, so in this way you are going to handle the different events in this. Okay, so this is the way. तो मैंने तीन चीजें बताई. Initially I told you what are the decision making statement, if है और if else है. उसके बाद मैंने बताया यूजर डिफाइन फंक्शन, जो फंक्शन का नाम और वो स्टेटमेंट ब्लॉक आप डिफाइन कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट अब मैंने बताया इवेंट हैंडलिंग. ओके, इस तरह अलग अलग टाइप के इवेंट्स है. ओके, सो दिस इज द वे. There are different concepts of JavaScript as well as HTML. Now what we will do, we will see certain programs of this. Okay, so programs are also very interesting. Just a bit. Okay, so here एक program में थोड़ा सा आपको explain करता हूँ. All these things which are there, those are there in these 3 to 4 different programs, and programs are very very nice and very very simple. Okay, so have a look on this. So I will start with the first, that is a circle area. Just a minute. I will just open this, then I will explain it and then I will run it. Okay, so here I have made this maximize so that you will understand it completely. Okay, so this is the program which is used to get the area of a circle. अभी इनिशियली देखो, ये सारी चीजें जो है हेड के, ये मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है, उसके बाद HTML है, उसके बाद हेड है, उसके बाद टाइटल है. ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल और हेड टाइटल मैंने क्लोज कर दिया, हेड मैंने क्लोज कर दिया. हेड के बाद शुरू होता है मेरा बॉडी. बॉडी में क्या है? आई कैन गिव द कलर टू द बॉडी. बॉडी कलर यहाँ पे मैंने दिया है, देखो BG कलर इज देयर. ओके, बैकग्राउंड कलर इज देयर विच इज येलो. देन हेडिंग 1, यहाँ पे हेडिंग का नाम क्या है? प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल. टू जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आना चाहिए, सेव कर लेता हूँ. देन उसके बाद दिस इज ऑल्सो यू हैव सीन इन द लास्ट फ्यू प्रोग्राम्स, दैट इज वी आर डीलिंग विद द जावास्क्रिप्ट. तो उसका सिंटैक्स है स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अंडरस्कोर जावास्क्रिप्ट. ओके, उसके बाद मैं 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा. सी यू हैव सीन द वेरिएबल्स. वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इससे पहले हमने देखा है. 2 वेरिएबल्स है आर और एरिया. आर इज देयर फॉर रेडियस एंड एरिया इज देयर फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल. अभी उसके बाद जो अलग अलग प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको दिखाई दिए थे, जैसे कि पार्स इंटीजर एंड ऑल. सो उसमें एक प्रॉम्प्ट नाम का चीज मैंने आपको दिखाया था. दैट प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट इट इज गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. ओके, सो जब मैं यहाँ पे आर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो प्रॉम्प्ट इज कंसिडर टू बी द वैल्यू टेकन फ्रॉम द यूजर. और इसके बीच में जो मैं डालता हूँ दैट इज anything I can put here. Enter the radius or enter something or enter something and everything anything I can write between these two curly braces. Okay, उसके बाद
द एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है 2 पाई एंड आर, ओके, सो पाई आर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई इंटू आर, ओके, ये होगा मेरा एरिया कैलकुलेट। और उसके बाद उसको मुझे राइट करना है, ये भी हम इससे पहले हमने देखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1 इज द हेडिंग 1, यू एंटर द रेडियस वैल्यू, क्या एंटर किया मैंने रेडियस वैल्यू, आई हैव एंटर द रेडियस वैल्यू एज प्लस आर, ओके, एंड मुझे जो एरिया मिला वो क्या मिला, प्लस एरिया, उसका मतलब है एरिया प्लस इज गेट एडेड इन दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एरिया इज गेटेड इन द डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, so script is ending, body is ending, HTML is ending, okay, so this is the program which is very interesting that I can enter something and I will get my value, okay। अभी फिर से इसको HTML में मैंने सेव किया है और मैं इसको सिर्फ डबल क्लिक करके मैं इसको रन कर रहा हूँ, okay, it has again taken the browser things। अभी इसमें क्या है आ रहा है देखो, you might some थोड़ा सा विजुअलाइजेशन छोटा है इसमें, but I will just tell you what is here, enter the radius of the circle, ऐसा ये लिख के आया है यहाँ पे, ओके, दिस इज द मैसेज बॉक्स। नाउ आई विल एंटर द रेडियस दैट इज 4, आई हैव एंटर द 4, उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम ओके किया। तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैंने बैकग्राउंड लिया था येलो, उसके बाद ये लिखा था प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, यू एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 4 एंड एरिया इज देयर एज 50.24, ओके, ये एरिया है मेरा, ओके। सो इन दिस वे द प्रोग्राम हैज बीन रनिंग। तो इसमें हमने क्या देखा, we have seen the use of prompt here, okay, prompt and different data types, okay। Now again one more interesting program is even and odd। Now see what I am doing is I am trying to make the video shorter and shorter, because अगर वो बहुत बड़ा हो जाता है तो that will increase your time also, so I will try to make it जितना easy हो सके उतना easy वे से मैं आपको explain करता हूँ। द कंसेप्ट विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज द इवन एंड ऑड प्रोग्राम। नाउ सी इस प्रोग्राम में हमने क्या क्या किया देख लेते हैं, ओके। नाउ सी दिस इज अगेन प्रोग्राम, इनिशियली आई एम स्टार्टिंग विद डॉक टाइप HTML, देन HTML, हेड टाइटल इवन ऑड नंबर्स, एंड टाइटल एंड हेड, ओके। सो ये अभी थोड़ा सा यू जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, इनिशियली यू विल ट्राई राइट डॉक टाइप, देन HTML, हेड, टाइटल एंड देन एंडिंग द हेड। हमेशा इस प्रोग्राम में इस टाइप में हम लिखते हैं, तो यू जस्ट कीप इन माइंड कि इस तरह से मुझे प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद बॉडी आता है, तो बॉडी में दिस इज टू अप टू मी वेदर आई हैव टू गिव द बैकग्राउंड कलर और नॉट, लेकिन यहाँ पे मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, ओके। सो बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इस बॉडी में अभी सिर्फ फिर से हेडिंग दिया है मैंने, हेडिंग क्या है, प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड, तो ये H1 मीन्स बहुत बड़ा हेडिंग इसमें आएगा। ये होने के बाद मुझे क्या करना है, आई हैव टू चेक समथिंग, सो मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं तो मुझे वहां पे जावास्क्रिप्ट लगेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव यूज द जावास्क्रिप्ट अप टिल दिस, देख एक एक लाइन में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट बैकस्लैश जावास्क्रिप्ट, this is you know already। then there are second thing, there are two variables a and b, उसके बाद a is equal to prompt enter the value, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था any value you can enter। अभी this is again very interesting, that is I am parsing this value, okay, so this is very interesting। parse integer a, तो जैसे मैंने वैल्यू एंटर किया, सपोज इट विल बी 10 point something और समथिंग समथिंग, तो दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज इंटीजर वैल्यू। सो वो इंटीजर वैल्यू होने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, आई एम यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके। नाउ सी अभी जो प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं ना, तो दोनों तीनों जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, डिसीजन मेकिंग बताया, और उसके बाद आई हैव टोल्ड यू टू द मोर डिफरेंट कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट्स हियर वी आर गोइंग टू कवर। सो इफ b परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, सो व्हाट डू मीन बाय इट, अगर b को मैंने 2 से डिवाइड किया और उसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है, तो उसका मतलब क्या है, अलर्ट। अलर्ट इज यू विल गेट अ मैसेज, सो मैसेज इज नंबर इज इवन, अगर वो नहीं आ रहा है तो नंबर इज ऑड, ओके। सो इतना सिंपल लॉजिक है इवन और ऑड का। सी दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर गिवन इन द एग्जाम, और इस तरह के सिंपल लॉजिक को आपको उसको आंसर देने पड़ते हैं, ओके। देन अगेन आई एम एंडिंग द स्क्रिप्ट
I am ending the body and I am ending the HTML. Okay, so this is again very interesting program. अभी ये programs थोड़े clear हो गए रहेंगे आपके, because a lot of programs we have already taken. Okay, now again I will run this. This is very nice program to run. Again यहाँ पे मैंने store किया है .html से और इसको मैंने double click कर दिया है. So enter the value. Again this may be somewhat less, the text is very smaller, so I will tell you I have entered the value 45 और मैंने OK दबा दिया यहाँ पे. I clicked OK. The number is odd. ये मेरा prompt आ गया. The number is odd. Okay. So ये प्रोग्राम है मेरा. Okay. The program for even and odd. Again what I will do? I will just run this. Okay. So मैंने run कर दिया फिर से. So मैंने यहाँ पे डाल दिया 44 and again I will click on OK. So see the number is even. Okay, so this has given the message as number is even. Okay, this is the message even. Okay, so I will change the I have done with this program. Okay, now we will go for other next program. Just a bit, something may be wrong. Okay, so next program will be the function program. तो यहाँ पे हम function आपका कुछ declare कर रहे हैं and then we are going further. So function program we will see here. Right click, open with Notepad. Again double click on this, so it will be hitting. अभी देखो यहाँ पे we are showing the function. So it is very interesting program कि जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कहीं से कॉल करते हैं उसी तरह से मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है. अगेन इनिशियल थिंग आई विल नॉट रिपीट सो मच ऑफ डॉक्यूमेंट HTML हेड टाइटल फंक्शन प्रोग्राम. ओके, यहाँ तक मेरा टाइटल हो गया. अभी टाइटल में ही या हेडिंग में ही मैंने ये किया है. व्हाट आई हैव डन इन हेडिंग, दिस स्क्रिप्ट आई हैव रिटन इन हेडिंग. सी फुल स्क्रिप्ट टाइप इज टेक्स्ट JavaScript, then function show. तो function show यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है. तो function डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, function with the function name. Okay, see function मैंने बताया था, उसके बाद function name है मेरा show और function के अंदर कुछ variables है. तो यहाँ पे I am not necessary to have any variable. तो function is show. function में जैसे मैंने enter किया तो open कर लिया बस. और function, what will happen in the function is I am going to get the message of alert, welcome to the function, and then I am going to end the function. I am ending the script and then I am ending the head. Okay, so function is there which is written in head. Okay, after that body में गया मैं. In the body again background color is yellow I have given. Again heading H1 I have given, that is use of function in the JavaScript with HTML. Then script language. तो language नाम का again one module is there which will be the JavaScript language. Here it has been called. और यहाँ पे जो function मैंने declare किया है ऊपर, so what function has declared, welcome to the function. तो ये वो function यहाँ पे मेरा execute होने वाला है. So I am ending this second script, ending the body, ending the HTML. So what do you mean by this? तो function is declared here. तो heading में complete हो गया और function is called here whenever you are ending here. Okay, so this is the way function is executed. Okay, we will see the execution of this one. So welcome to the function. Okay, so this is my function. Okay, again I will try to run this. So welcome to the function. देखो use of function in the JavaScript, welcome to the function. This is the function. After heading this function has occurred. Okay, so this is very simple example of function. Then again we will take one more example.
So one more example will be the again very simple example, that is the example of driving. Okay, again I will right click it, just I will show it. These programs, you now feel the programs will be very simple, because if you seen the earlier videos, so as compared to earlier videos, now the programs are maybe you are getting somewhat less tedious. Okay, again document type HTML, then head HTML, conditional statement is there, script type is the JavaScript, function क्या है मेरा check, मुझे क्या करना है, चेक करना है, ये मेरे फंक्शन का नाम है। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, कोई बंदा इफ ही इज हैविंग द एज ग्रेटर देन 18 देन ही इज क्वालिफाइड फॉर ड्राइविंग, इफ हिज एज इज लेस देन 18 ही विल बी डिसक्वालिफाइड फॉर ड्राइविंग। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन में मैंने ये लिखा है, सो दिस इज द फंक्शन इफ फंक्शन, इन द फंक्शन वेरिएबल इज एज, सो एज इज रिलेटेड टू द फॉर्म 1 which is taking the value of t1, okay, और उसको वही if it is less than or greater than or equal to 18 then alert मैसेज आएगा qualifies for driving, अगर नहीं है सपोज तो alert मैसेज आएगा does not qualify for the driving। okay, ये दो मैसेज आएंगे, उसके बाद ये एंड होगा और स्क्रिप्ट मेरा एंड हो गया, हेड एंड हो गया। सो एवरीथिंग इज देयर इन द हेड। ओके, अभी ये जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, चेक। तो ये चेक फंक्शन है, दिस फंक्शन इज अगेन रिटन इन द हेड जैसे कि अर्लियर प्रोग्राम में है, एंड आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन इनटू बॉडी। सो आई विल स्टार्ट विद बॉडी। फॉर्म का नाम है फॉर्म 1। सेंटर, सेंटर में क्या लिखना है, एंटर योर एज। अभी इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो ये जो टेक्स्ट है उसको मैं एंटर करने वाला हूं। दैट टेक्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी T1। जो T1 मैंने कहां पे लिया है, देखो I have taken the T1 here. Sorry, I have taken the T1 here. ये है मेरा T1 वैल्यू। ओके, सो मैंने T1 एंटर किया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने सबमिटेड बटन को क्लिक किया। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद दिस इवेंट गेट एग्जीक्यूटेड, मींस दिस फंक्शन गेट एग्जीक्यूटेड। चेक एग्जीक्यूट हो गया, तो क्या क्या एग्जीक्यूट हो गया, उसने चेक किया वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, उसके बाद एक अलर्ट आ गया, अगर नहीं है तो दूसरा अलर्ट आ गया, तो दिस फंक्शन इज टोटली एग्जीक्यूटेड। ओके, सो एंड देन आई एम एंडिंग द फॉर्म, एंडिंग द बॉडी, एंडिंग द HTML। ओके, सो वेरी सिंपल प्रोग्राम एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू। ओके, नाउ आई विल अगेन शो दिस वन। ओपन विथ फायरफॉक्स। सो एज मैंने एंटर किया 3, इट इज लेस देन 18, सो आई एम गोइंग टू सबमिट इट। डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, तो ये मेरा अलर्ट आ गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैंने एज कर दिया 31, देखते हैं, लेट्स से एज इज 31, I have submitted it, qualifies for driving. Okay, so this message I got. Okay, so this is the way how the function as well as decision making दोनों यहाँ पे मैंने use किए। Okay, now again I will tell you one more interesting program, which is the program of upper and lower case. Open with Notepad. I will maximize this. Okay, again same thing, यहाँ तक हेड में ही मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और फंक्शन को नाम दिया है मैंने डिस्प्ले। ये डिस्प्ले फंक्शन में क्या है, ओपन करली ब्रास, फंक्शन डिस्प्ले दिखा था। उसके बाद वेरिएबल ए है, तो ये वैल्यू लिया है इसने T1, मीन्स टेक्स्ट 1 में, फॉर्म 1 में जो वैल्यू है वो वैल्यू ए में आया है। उसके बाद उस फॉर्म 1 का जो T2 नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या आएगा, ए में जो वैल्यू है उसको वो अपर केस करेगा, 2 अपर केस। ये फंक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन दिस 2 अपर केस। ओके, सो दिस इज माय फंक्शन। तो व्हाट माय फंक्शन इज डूइंग इन हेड, द फंक्शन इज टेकिंग अ वैल्यू एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू अपर केस। ओके, उसके बाद बॉडी में मैंने एक फॉर्म डाल दिया, फॉर्म नंबर 1। उस फॉर्म में सबसे पहले आया एंटर द स्ट्रिंग वैल्यू। कोई भी स्ट्रिंग का हम वैल्यू एंटर करेंगे तो उसका नाम मैंने T1 दिया है, बिकॉज T1 आई हैव ऑलरेडी shown here,
ऊपर मैंने T1 लिखा है। देन इनपुट टाइप बटन एंड वैल्यू इज प्रेस बटन। ओके, तो बटन प्रेस करने के बाद क्या होगा, ऑन की प्रेस डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। सो व्हाट डिस्प्ले नाम का फंक्शन में क्या है, देखो यहां पे सी द डिस्प्ले नाम फंक्शन। तो डिस्प्ले फंक्शन में ये चीज है मेरे याद, तो जो T1 है उसको अपर केस में मैंने कन्वर्ट किया, ये है मेरा डिस्प्ले फंक्शन। ओके, तो फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटिंग एंड उसके बाद ये लिखा है जस्ट अपर केस लेटर इज, और जो एग्जीक्यूट हुआ है मींस T1 का जो वैल्यू है वो T2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में जाएगा। दैट वैल्यू इज गिवन इन द टेक्स्ट। अगेन फॉर्म इज एंडिंग, बॉडी एंडिंग, HTML। ओके, so I think it has taken somewhat in a faster manner in order to save the time. अभी अलग अलग प्रोग्राम्स हमने लिए हैं तो it will be easy for you to understand, इसलिए थोड़ा सा जो है मैंने स्पीड मैंने नॉर्मली बढ़ा दिया है। If you want to reduce the speed then you just ping me, I will reduce my speed. So now just I will click on this, double click. So it will get, okay, I think it has worked already. Okay, enter the string value. अभी जब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, सपोज आई एम गोइंग टू एंटर माय नेम हियर, ओके, डॉक्टर नीलकंठ डी। ओके, so what I will do, I will just press the button, see what will happen. It should be converted into the string. Okay, now see what will happen in just a minute, we will see. Okay, I will again check what happened. Open with Firefox, एक बार देख लेते हैं, just press button, enter. Okay, it should, sorry, okay, so it has been given as SSD, small SSD था, कैपिटल SSD आ गया। तो जैसे मैंने अभी किया था, how I am not saying how it has not come, it should come, so I have pressed here, press enter, डॉक्टर नीलकंठ टी। ओके, सो लोअर केस स्ट्रिंग था जो फॉर्म में मैंने ऑलरेडी डाला था। ओके, एंड दैट फंक्शन हैज बीन देयर इन द हेडर, और वो फंक्शन नीचे फॉर्म में मैंने एग्जीक्यूट किया। ओके, सो दिस इज द वे द प्रोग्राम इज। ओके, सो नाउ in this smaller playlist of basics of HTML, we will be having our last program. After that we will go some good programs, or I can say some advanced programs we will search out after this one. Okay, इस प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम को रन करते हैं। Just initially we will see what is it, and just you visualize, and just I will show you the run program, okay, in order to save the time. Okay, so this is a doc type HTML head. Okay, doc type HTML head, then body, header, h1, this p is the footer. Okay, say this is header thing, उसके बाद सेकंड हेडर है h1, h2 और एंड हेडर, उसके बाद नेविगेट है, okay, something has been written, the nav element represents something 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 like this. उसके बाद some website is there, a reference, okay, इस तरह से मैं समझाता हूँ। उसके बाद next website is there, then navigation end, then उसके बाद educational based website, ये टाइटल है, उसके बाद फिर से एक वेबसाइट का नाम है, उसके बाद एग्जाम इन्फो नाम का वेबसाइट है। ओके, देन नेक्स्ट सेक्शन
सो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में सब कुछ लिख दिया है. If you want, I will share everything as a notes here afterwards. Okay, so you will get everything in a very nice manner. Okay. Just a minute, I will show now. Okay, so इस तरह से ये प्रोग्राम है. So ये पूरा जो प्रोग्राम है, you just see the program, you just study this program. Just a minute, I will again zoom out so that you can see the full program. Okay, control minus. Okay, so this is the program, full program of whatever I have written. Okay, I will again share this as a notes also. So this program I will run. See how these hyperlinks and everything has happened here. Initially HTML5 include new semantics, it includes tags and footers. So each and every section is there. देखो यहाँ पे वेबसाइट है, तो यहाँ पे hyperlinks भी दिया है मैंने, वेबसाइट दिया है. Okay, so everything is here. Okay, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो I will go to some website and all. Okay, now it is not live so that it will not get. So नीचे जो है लास्ट में स्टेट बोर्ड वेबसाइट, तो स्टेट बोर्ड वेबसाइट में जाना चाहिए. So whenever we will make this HTML page live, then we can see this website which is there. Okay, so in this way, see guys, I have tried to cover the basics of HTML now. So after that, in the next lecture we are going certain advanced things related to the HTML that will be very beneficial for your 12th science, commerce and arts who are having the IT subjects. Again, I am going to make an appeal to you that you please subscribe our channel, because this is only for the students. टाइम बहुत कम होता है and within less time you can prepare, इसलिए ये वीडियोस मैंने बना लिए हैं. So please subscribe this so that we will get motivated to make other good videos. Okay, so thank you very much. So see you in the next lecture guys. Thank you.